حضرت سیدی احمد جام زندہ پیر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر لوگوں کو جمع دیکھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مجمع کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہاتھی مر گیا ہے. کیا مر گیا؟ ہاتھی مر گیا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اس کی سونڈ تو ویسی ہی ہے، آنکھیں بھی ویسی ہی ہیں، ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں، پاؤں بھی ایسے ہی ہیں. غرض سب چیزوں کو فرمایا کہ یہ سب ویسے ہی ہیں، پھر کیسے مر گیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کے پاؤں بھی ویسے ہی ہیں، آنکھیں بھی ویسی ہیں، ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں. یہ فرمانا تھا کہ فوراً وہ ہاتھی زندہ ہو گیا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند و سلامت ہوں گے. تو آج ہم پھر سے سننے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب کہانیاں. تو شروعات کرتے ہیں مشرق عطار سے، میرا مطلب مرشد عطار سے. تو پیش ہے مرشد عطار کی ایک کرامت. حضور چوک میرے سسٹر، اس کی ایج جو 9-10 سال کم و بیش اس کی ایج ہے، تو اسی کو جنات کا اثر جنات مسلط ہو گیا تھا. میری سسٹر کو بہت تکلیف ہوئی، بہت جنات کی تکلیف. 2 مہینے کے بعد جنات کا ظہور ہوا. اس نے بات کرنا شروع کی، بولنا شروع کیا. جن اس نے بتایا کہ میں اس وجہ سے آپ کے سسٹر کو میں نے پکڑا ہوا مسلط کیا ہوا ہے. تو میں مختلف عاملوں سے تعویذات لے کے آیا تھا، لیکن فرق کوئی نہیں ہوا، کچھ بھی فرق نہیں ہوا. پھر بعد میں ہمارے قریبی ہیں سکرانڈ مورو، وہیں سے دار اسلامی کے تعویذ لے کے آیا، کچھ فرق ہوا پر زیادہ تر نہیں ہوا تھا. بعد میں ہوا ایسا کہ جن نے بہت تکلیفیں دی. جن نے مجھے بتایا کہ میں اس آپ کے بیٹی کو، اس آپ کے سسٹر کو میں جو نا مار دوں گا، چھوڑوں گا نہیں. تو میں نے اسے بتایا کہ میرے بھی مرشد کریم ہیں، ایسے ہم بھی نہیں ہیں کہ آپ بس اسی طرح اس کو مار دو. ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ ہیں تو ہمارے بھی مرشد ہیں، ہمارے بھی جو ہے نا وہ بیٹی ہوں، ہم انہیں کو جا کے التجا کرتے عرض کرتے ہیں. اسی کے بعد جن نے بہت تکلیف دی، اتنی شدید تکلیف دی کو بچھو سے میرے سسٹر کو کاٹا. ایک بچھو بن کے سسٹر نے بتایا کہ بچھو مجھے کاٹتا ہے، کہیں پاؤں میں، کہیں زبان میں، کہیں کس طرف درد ہوتا ہے. پھر 3-4 دن تک بے ہوش رہتی ہے. اس کے بعد میرے سسٹر کو ہوش آ جاتا تھا. آخری دن ہوا ایسا کہ میرے سسٹر کو جو ہے نا اس پسلی میں بہت درد ہوا، اتنا شدید درد ہوا جس سے کہ اونٹ روتا ہے، اونٹ آواز نکال، اس طرح سے میرے سسٹر جو ہے نا وہ آواز نکال رہی تھی. تو میں شدید پریشان تھا، رو رہا تھا. اسی دوران میں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے میں نے آپ کے سامنے آپ کی طرف منہ کر کے جھولی پھیلائی اور آپ کو دامن پھیلا کے عرض کیا کہ حضور پہنچیے، یہ بچی آپ ہی کی مریدنی ہے، آپ ہی کی غلام ہے، ہم بھی آپ کے غلام ہیں، مہربانی کیجیے پہنچے، اس بچی کو بچائیے. 2 سیکنڈ یا 2 منٹ کے کم و بیش کے بعد وہ جن ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ اپنے مرشد کو جا کے عرض کیجیے کہ مہربانی کر کے اب مجھے تکلیف نہ دے، میرے بچوں کو جا کے جلانے آیا ہے، آپ کا مرشد الیاس قادری جلانے آیا ہے. تو حضور میں نے جن کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کراچی میں ہے. اب میں اسے کیسے، اس نے بولا جیسے آپ نے اس کو وہاں بلایا ہے ایسے ویسے اپنے مرشد کو عرض کیجئے کہ برائے مہربانی میرے بچوں کو نہ جلا، میں جو ہے نا آپ کے سسٹر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کو ہوگا. میں نے اسے بتایا کہ نہیں آپ پہلے بھی جھوٹ بول چکے ہیں، اس طرح سے جھوٹ بولتے. اس نے بولا کہ نہیں آج کے بعد میں کبھی بھی نہیں آؤں گا. حضور اس نے بتایا کہ آپ کے سسٹر کو جو نا درد میں نے نہیں دیا تھا، چلو ٹھیک ہے اگر مانتے ہیں میں نے دیا تھا تو اس درد کو آپ کے مرشد الیاس قادری نے اس کو اپنی کرامات سے درد کو ختم کر دیا. اب آپ کے سسٹر بالکل ٹھیک ہے اور میں اپنے جو ہے نا بچے، یہ آپ کا شہر چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں کو اوقاف. اس سے اب کم و بیش 1 سال گزر چکا ہے، پھر جن واپس نہیں آیا، جن چلا گئے حضور. بریکنگ نیوز، ابھی خبر ملی ہے کہ کوکاف کے پیچھے جنات کے ساتھ لڑائی میں قادری صاحب ہوئے زخمی. جی ہاں، بتایا جاتا ہے کہ ایک مرید کی پھوپھی کی بانجی کی بوا کی بیٹی کو ایک کوکاف کا خونخوار جن اٹھا کے لے گیا، اور جیسے ہی یہ خبر مرشد عطار تک پہنچی تو وہ جلال میں آ گئے اور جلال میں انہوں نے اپنی دوتی زمین پہ ماری اور ہوا میں اڑنے لگے اور F-16 کی سپیڈ سے وہ کوکاف کے پیچھے چلے گئے. لیکن وہاں پر جنات نے کریک ڈاؤن لگایا ہوا تھا. تو جیسے ہی قادری صاحب لینڈ ہوئے تو جنات ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں بہت مارا، مطلب بہت مار کے بھرتا بنا دیا. خیر میں مذاق کر رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. دراصل بات یہ ہے کہ عطار صاحب جب خود بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں. لیکن جیسے ہی عطار صاحب کے مرید بیمار ہوتے ہیں تو وہ عطار صاحب کے پاس آتے ہیں، دم دوا اور تعویذ لے کے جاتے ہیں. اس بات میں کوئی سینس نہیں بنتی، لیکن یہ سینس لیس لوگ جو ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں. نہیں، ایک بار غور سے دیکھو تمہارا یہ مرشد عطار جو ہے یہ بیڑی نہیں جلا سکتا اور تم بات کر رہے ہو کہ یہ بندہ جو ہے جنات کے بچے جلانے چلا تھا. میرے بھائی، جب انسان جن کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس نے جن کے بچے ڈھونڈے کیسے اور انہیں جلایا کیسے؟
जिन्नात हमारे दरमियान में रहते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। और जो इस बंदे ने कहकाफ का जिक्र किया, तो आप में से बहुत लोगों ने ये कहकाफ नाम सुना होगा, लेकिन अपनी दादी अम्मी से, अपनी अम्मी से, अपने वालिद साहब से कहानियों में सुना ही होगा। तो दरअसल बात यह है कि कहकाफ जो जगह है ये कहानियों में इस्तेमाल होता है कि वहां जिन रहते हैं, लेकिन हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है जिन्नात से। कहीं भी प्रूव नहीं हुआ किसी भी हदीस में और किसी भी जगह ये प्रूव नहीं हुआ कि वहां जिन्नात रहते हैं। तो इस बंदे ने अपनी माँ से, अपनी दादी से कहानी सुनी होगी, तो भाई इसने यहां पर चिपका दी। यूएसए, इंग्लैंड या फिर जहां पर भी अंग्रेज ज्यादा रहते हैं और गैर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जिन छेड़छाड़ नहीं करते, अंग्रेजों पर जिन नहीं चढ़ते। या फिर आप सऊदी अरब को ले लीजिए या फिर यूएई को ले लीजिए, जहां पर ये जो आमिल हैं, ये जो बाबे हैं, बैन हैं, तो वहां पर भी जिन्नात छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान है, वहां पर बाबे बहुत ज्यादा है, ये जो आमिल बहुत ज्यादा है, तो यहां पर हर दूसरा बरेलवी जो है वो जिन का शिकार है। तो दरअसल बात यह है कि जिन जो होते बाबों की वजह से आते हैं। तो मेरे भाइयों, आप इन बाबों को निकालो, जिन भी कभी नहीं आएंगे। तो जिन्नात से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि बाबों से छुटकारा पाओ। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। तो 9 महीना पहले मुझे अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया, लेकिन उस बेटे को बर्थ एस्फिक्सिया, मतलब माँ का जो पानी उसके मुंह में चला गया और उसको तकलीफ हो गई। जब हम पीएमसी अस्पताल पहुंचे तो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चा बिल्कुल सीरियस है और इसको आप हैदराबाद लेके जाएं। और हैदराबाद वालों ने कहा कि बच्चा बिल्कुल ही सीरियस है, आप हमसे इलाज नहीं हो सकेगा, आप इसको कराची लेके जाएं। यहाँ पे हम जब कराची पहुंचे तो डॉक्टर्स ने एक अजीब किस्म की बात कही कि हमारी किताबों में इसका इलाज लिखा ही नहीं है, तो अगर आप कहें तो हम इलाज शुरू करें। हमने कहा कि बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह ताला शिफा देगा। मैं बहुत ही परेशान हो गया था। और नवाबशाह से हमारे एक दोस्त कदीर भाई ने फ़ोन किया, कदीर अतारी साहब ने, और उन्होंने डॉक्टर निज़ाम साहब से बात कराई, जिन्होंने आपसे रुजू किया। और हजरत साहब फॉरेन गए हुए थे और उन्होंने वहाँ से दुआ फरमाई और उन्होंने मुझे SMS किया कि ये उन्होंने दुआ फरमाई और कहा कि फैज़ान मदीना जाएं और वहाँ से आप जो है तावीज़ ले लें। यहाँ पे मैं ज़िंदगी में पहली बार फैज़ान मदीना आया और फी सबीलिल्लाह तावीज़ लिए। और जब तावीज़ इस्तेमाल किए तो डॉक्टर साहबान हैरान रह गए, क्योंकि जो उनको तकलीफ थी, एक तो सेरिब्रल इनकेफेलोपैथी, नमोनिया, सेप्सिस, कार्डियोमेगाली, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन और पोस्टीरियर यूरोथेरल वेल्व, और जिसका ऑपरेशन करना लाजमी था। कार्डियो के डॉक्टर ने कहा कि 28 दिन से या महीने से पहले इलाज मुमकिन नहीं, जो 2 दिन के अंदर इलाज हो गया। और दिल का एक बाल जो बिल्कुल बंद था वो भी 2 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। और बाकी दिमाग की तकलीफ जिसके लिए डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज मुमकिन ही नहीं, वो भी हैरान कुन नमूने से जल्दी ही ठीक हो गया। और उसके अलावा जो डॉक्टर नासिर थे उस बड़ी हॉस्पिटल में कराची में, जो जिसने कहा कि इसका ऑपरेशन पोस्टीरियर यूरोथेरल वेल्व, ये ऑपरेशन लाजमी था। जब अल्ट्रासाउंड किया वो बिल्कुल ऑपरेशन की तैयारी ही हुई थी और हम भी तैयार थे, डॉक्टर साहब भी तैयार, हम भी तैयार थे ऑपरेशन के लिए। जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया तो वो जो गिठान थी जिसका ऑपरेशन लाजमी था वो गुम हो गया। तो सारे डॉक्टर साहिबान हैरान कुन नमूने से कह रहे थे कि ये आखिर ये चक्कर क्या है। तो मैंने आखिर उनको बताया कि पीर साहब की ये दुआ है। ये है अत्तारी के मीठे मीठे प्यारे प्यारे मुर्शिद, जो कि मीठा मीठा प्यारा प्यारा बीमार हुए हैं। और ये है अत्तारियों के मुर्शिद के बेटे, जो कि आंखों में चश्मा पहनते हैं और साथ में ग्लव्स भी पहनते हैं। ग्लव्स शायद बीमारी से बचने के लिए पहनते हैं या फिर वो किसी बीमारी का शिकार है। और ये प्यारा सा बच्चा, अल्लाह इसे नजर बद से बचाए और इसकी जिंदगी बेहतर बनाए। ये मुर्शिद अत्तार के पोते हैं और ये भी चश्मा पहनते हैं। और यह है हमारे मीठे मीठे तोते, मेरा मतलब मुर्शिद अत्तार के खासम खास मुरीद, और ये भी चश्मा पहनते हैं। यह है मीठी मीठी प्यारी प्यारी अत्तारी आवाम। इनमें से भी बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो और बीमारियों का शिकार हैं। बात दरअसल यह है कि अत्तार साहब जो हैं वो ना तो अपने बेटे को ठीक कर पा रहे हैं, ना अपने पोते को ठीक कर पा रहे हैं, ना ही अपने खासम खास मुरीदों को ठीक कर पा रहे हैं, और ना ही खुद को ठीक कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बीमारी में मुब्तला है। पाँव की तकलीफ की वजह से
नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था। तो अगर ये बंदा अपने खास लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने मुरीदों को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो यही बंदा जो है किसी नामालूम जगह पे पैदा हुआ एक नामालूम बच्चा है, उसमें नामालूम बीमारियां हैं, उनको ठीक कर देता है। मतलब ये कुछ अजीब बात है, इसमें कोई सेंस नहीं बनती, ये कुछ अजीब व गरीब है यार। मतलब थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। अगर अतारी साहब में इतनी शक्तियां हैं, इतने ताकतवर हैं, तो मेरे भाई सबसे पहले खुद को ठीक करे, अपने खासम खास मुरीदों को ठीक करे, अपने बच्चों को ठीक करे, अपने आवाम को ठीक करे, क्योंकि उनका हक पहले बनता है। तो ये नामालूम जगह पे पैदा हुआ नामालूम बच्चा जिसे नामालूम बीमारियां हैं, वो बाद में आते हैं, पहले अपने फैमिली वाले, अपने मुरीद आते हैं। ठीक है, तो अतारी साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई पहले खुद को ठीक करें और अपने बच्चों को ठीक करें और अपने मुरीदों को ठीक करें, उसके बाद आवाम के सामने कहानियां पेश करें। खैर, अगली कहानी पर जाने से पहले आप इन लोगों के दीदार कर लीजिए। मतलब देखो किस स्टाइल से चल के आ रहे हैं, मतलब किस हिसाब से चल के आ रहे हैं यार। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अभी अभी चांद पर 40 फीट के झंडे गाड़ दिए हो, और इन लोगों ने अभी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया हो, और मार्स पे जो है लैंड भी करवा दिया हो, और वहां पर एलियन लाइफ जो है वो ढूंढ के निकाल लियो। इस हिसाब से चल के आ रहा है। मतलब ये लोग 21 तोपों की सलामी डिजर्व करते हैं, लेकिन इन लोगों को तोपों की नली के सामने रख दो, उसके बाद 21 तोपों की सलामी दे दो। खैर, चलते हैं अगली कहानी की तरफ। हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। तवज्जो करें, बहुत खूबसूरत बात है। मखदूम साहब के पास आया और उसने कहा कि आपको जहांगीर क्यों कहा जाता है? और मखदूम साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को कभी जहांगीर नहीं कहता, मुझे लोग जहांगीर कहते हैं। तो लोग क्यों कहते हैं? ये भी तकलीफ। लोग कहते हैं, लोगों से पूछ। वो मखदूम साहब से टकरा रहा है। मखदूम साहब के पास लोग आपको जहांगीर क्यों कहते हैं? आपने फिर फरमाया कि मेरे पीर ने मुझे जहांगीर का लकब दिया है। मेरे पीर ने मुझे जहांगीर, ये लकब जो था ना, आपके पीरो मुर्शिद ने दिया था। अब जब कहा ना कि मेरे पीरो मुर्शिद ने दिया, तो उसको तो अपना रास्ता ले लेना चाहिए था ना। लेकिन आपने सुना होगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है ना, यही होता है ना। तो अब मखदूम साहब ने कह दिया कि मैं नहीं कहता, भाई पब्लिक कहती है, लोग कहते हैं कि मुझे जहांगीर। कहा लोग क्यों कहते हैं? तो कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा। अब इतने बड़े पीरो मुर्शिद ने जहांगीर कह दिया तो बात खत्म होनी थी। तो कहा पीरो मुर्शिद ने जहांगीर क्यों कहा? पीरो मुर्शिद ने जहांगीर क्यों कहा? मखदूम साहब को आया गुस्सा। मखदूम साहब को आया गुस्सा। कहीं पर दलीलों से समझाते थे, लेकिन कहीं इतना जलील आ जाता था तो मखदूम साहब को गुस्सा आया। और जब मखदूम साहब को गुस्सा आया तो मखदूम साहब ने फरमाया, तू ये कहता है कि मेरे पीर ने मुझे जहांगीर क्यों कहा? अब सुन, मैं जहांगीर भी हूं। तवज्जो, मैं जहांगीर भी हूं और मैं जहांगीर भी हूं। बात समझे? यही बात समझने की है। तकरीर सुनने और देखने का फर्क यही है। मैं जहांगीर भी हूं और मैं जहांगीर भी हूं। बस इतना कहा कि मैं जहांगीर भी हूं। वो नीचे गिरा, तड़प तड़प कर मर गया, उसकी रूह निकल गई। अमीरुल कादरी जिस बाबा जी के किस्से सुना रहे हैं और उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, असल में वो कातिल हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को इस बुनियाद पे नहीं मारा जा सकता कि उसने सवाल पूछा है, और बाबा जी ने सरासर कत्ल किया है। और इस्लाम में कत्ल बहुत ही बड़ा गुनाह है और बाबा जी कातिल हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अहमद तबरेज़ तुमने तो बाबा जी की तौहीन कर दी। तो मेरे भाई, मैंने तौहीन नहीं की, बल्कि अमीरुल कादरी ने तौहीन की है, क्योंकि इसी ने तो कहा कि बाबा जी ने सवाल पूछने पर बंदे को मार दिया। और अजीब बात तो ये है कि ये बेवकूफ़ इंसान इस सब को दीन और इस्लाम से जोड़ रहा है, हालांकि हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम तो माफ़ करना सिखाता है, लेकिन ये बेवकूफ़ इंसान इस सब को दीन और इस्लाम से जोड़ रहा है। अगर इस बेवकूफ़ इंसान ने अपनी एक कहानियों वाली किताबें छोड़कर हदीसें पढ़ी होती तो इसे मालूम पड़ता कि ताइफ के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सरदारों से बात करने गए थे तो उन्होंने किस तरह के गुस्साखाना सवाल पूछे थे। और जब आप अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे, आप पर पत्थर बरसाए गए और आप लहूलुहान थे। आप चाहते तो अल्लाह से दुआ करते, ताइफ जो है उल्टा हो जाता और वहाँ के लोग मुंह के बल चल के आते और आप अलैहिस्सलाम से माफिया मांगते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मिसाल कायम कर दी कि इस्लाम दीन है माफ़ करने का, इस्लाम दीन है बर्दाश्त करने का। सहाबा पर जुल्म किए गए, कैसे कैसे टॉर्चर दिए गए, उनको पीटा गया, लेकिन सहाबा ने किसी को नहीं
नहीं मारा, सहाबा ने माफ़ किया, क्योंकि इस्लाम सिखाता है माफ़ करना, इस्लाम सिखाता है बर्दाश्त करना। लेकिन इनके बाबे समझ नहीं आता कि इनके बाबे कौन से दीन में मानते थे, कौन से इस्लाम में मानते थे। अगर किसी ने लोटे का मुंह किबले की तरफ ना किया तो उसे मार देते थे, अगर किसी को कद्दू पसंद ना आता तो उसे मार देते थे, अगर कोई सवाल पूछता था तो मार देते थे। ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है, और ना ही किसी अल्लाह के वली ने ऐसा कुछ किया है। ये सरासर मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और इन कहानियों का दीन और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर कोई गैर मुस्लिम जो है मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरे भाई, ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है, और इन मौलवियों का ये जो झूठी कहानियाँ सुनाते हैं इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इन कहानियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।